Hello students, welcome to Geography and we are on Manufacturing Industries, chapter number 6. See, Manufacturing Industries, somewhat we are going to learn about the industrial sector. Here, lot of things are there which you have never learned before. But then if I tell you, most of the things you know. And there is something called Ramban. Because here we want to know few things which are associated with almost every industry. So I'll tell you those things as we move ahead with the chapter. But let's see what is the importance of the industries. And before we move on to the importance, find out the meaning of manufacturing. Production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. See, this is the precise one. You can write it in your own words. अब ये कैसे याद रखिए? Raw material comes from the primary sector. Then the raw material is processed to a little more valuable product. And this is known as manufacturing. For example, sugarcane. Sugarcane is a primary product. Then what is the rate of a sugarcane and a 1 kg sugar? I think 1 kg sugar is little more expensive. So that's more valuable product. वो कैसे बना है? Through a process, and that everything is known as manufacturing. तो ये आपका definition है. अब ये क्यों ज़्यादा important है? See, this is your whole answer. As it is, you need to understand and each and every line. And few of these lines are explained in paragraph when we move ahead. So let's see the first line. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. Simply, how strong and developed your economy is as a country is seen by the number of manufacturing industries and how developed your industries are. अगर आपके कंट्री में ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आप जानते हैं कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों के पास जॉब होगा. सो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. तो ये है कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज. योर फर्स्ट पॉइंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज not only help in modernizing agriculture, they also reduce the heavy dependency of people on agriculture. See, disguise unemployment or disguise employment is where? In agriculture sector. क्यों? ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उन ज़्यादा लोगों को उस सेक्टर से अगर हटाया जाए और उन्हें नुकसान ना हो और हमें फ़ायदा देना है, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं? कहाँ जॉब दे सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे. तो फिर इंडस्ट्रीज में अगर उन्हें जॉब मिलेगा तो एग्रीकल्चर थोड़ा मॉडर्नाइज भी हो जाएगा और डिपेंडेंसी जो लोगों की एग्रीकल्चर पे वो भी कम हो जाएगी. अच्छा, मॉडर्नाइज कैसे हो जाएगा एग्रीकल्चर? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर, ऑल मशीन्स, ये प्रोडक्शन होगा तभी तो ये जाके आएंगी चीज़ें और इनसे फिर आपका एग्रीकल्चर आसान हो जाएगा, है ना. और देखिए मशीन्स क्या करती हैं? दे मेक थिंग्स ईजी फॉर यू, दे रिड्यूस लोड ऑन यू और reduce the number of people required to do a job. तो फिर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे एग्रीकल्चर में and they will have a good income. Industrial development is a precondition for eradication of unemployment. Good point. Precondition. If I want to reduce poverty from my country, let's have more and more industries. Because if you are poor, that means your focus and your primary earning is from agriculture. And जैसे कि previous point है, अगर आपको यहाँ से लोड हटाना है तभी जाके एक्स्ट्रा अर्निंग होगी, तो आपको इंडस्ट्रीज बढ़ानी है. सो दिस इज द पॉइंट. ये अगर कंट्री को डेवलप कराना है और अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री शुरू करनी है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expand the trade and commerce, also brings foreign exchange. Let's go to the very first point. As I said, if you produce more, you will export more. You export more, lot of fund will come. Lot of fund means your country is doing good. तो आपका import export business सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और सारे जो dependent लोग हैं उनसे उनको benefit होगा. Ultimately, we will be a developed country. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing sector. Not only India, any country, if you are there, please diversify your industries. You just can't have the industries which were there 50 years back and you continue with the same sort of industries. जो भी market में नया आ रहा है, you put money in that and diversify the portfolio of nation.
then more and more job, more and more import export and more money and good living standard of developed country. तो ये बताता है कि इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का. इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ये बहुत अच्छी सिंपल सी लाइन है. नॉर्मली दे वांट टू से इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर गोज हैंड टू हैंड, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है. अब वो कैसे होगा, लेट्स सी. सरप्लस लेबर ऑफ एग्रीकल्चर इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री. ये हमने पहले भी पढ़ा. डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आप ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाओगे. वो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है उस तरीके से रिडक्शन होगा और लोग इस सेक्टर में ज्यादा काम करने लगेंगे. एग्रीकल्चर इज अ मेजर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज. आप जानते ही हैं कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है हमारे, सिल्क, जूट, वो सारे के सारे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं. तो सबसे बड़ा सप्लायर क्या है रॉ मटेरियल का, वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर. आप कोई भी ले लीजिए, जूट ले लीजिए, ऑयल सीड, शुगर, ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं. Principal agriculture products are the raw material for the textile, edible oil, soap, sugar and many food industries. Which are the principal products? Oil seeds, sugar cane, jute, cotton, silk, everything and all are naturally occurring, primary sector. जब इसे प्रोसेस करोगे तो we will get a more valuable product और ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाएगा. और डिपेंडेंसी देखिए, जब तक आपके पास कॉटन नहीं होगा तब तक आपके पास कपड़े नहीं होंगे. जब तक जूट नहीं होगा गनी बैग नहीं होंगे, शुगर केन नहीं होगा तो शुगर नहीं होगा. सो दैट्स हाउ कि सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से आ रही हो. डिपेंडेंसी देखिए कैसा है. अच्छा एक चीज़ और सोचिए, मैं अगर आपको रॉ कॉटन दे देता हूँ, जूट दे देता हूँ और गन्ना दे देता हूँ और बना दीजिए कपड़ा, आप थोड़े से पीछे जाओगे और जो पुराने मेथड है मैन्युफैक्चरिंग के वो यूज़ करोगे. बट देन आपको नहीं लगता कि करेंटली अगर इफ़ यू एंटर एन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल सी मैनी मॉडर्न मशीन्स और वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ना, मशीन प्रोडक्शन इटसेल्फ इज अ डाइवर्सिफाइड फील्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जब आपको आयरन मिलेगा, उस आयरन से फिर आप जाके दूसरी मशीन्स बनाओगे. हल, आपके ट्रैक्टर, थ्रेशर, सबके लिए वो चीजें लगेंगी. तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन और इंपॉर्टेंस है. एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट परचेसर ऑफ अवर इंडस्ट्रियल आउटपुट. फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज में. इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज में. इसे खरीदता कौन है, एग्रीकल्चर. ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्रीज में. हार्वेस्टर कहाँ बनते हैं, थ्रेशर कहाँ बनते हैं. और खरीदता कौन है, एग्रीकल्चर. आपको नहीं लग रहा है दोनों के दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट है. एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, सिम्बायोटिक. मैं आपसे कुछ लूंगा, आप मुझसे कुछ लीजिए. तो दोनों ही सेक्टर को अगर आपको बड़ा करना है तो आपको दोनों पे इक्वल ध्यान देना होगा. पर ज्यादा फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा और टोटल फायदा कंट्री को होगा. और वो कैसे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी. देखिए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने ये पढ़ा है कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूट हाउ मच टू योर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, which is nothing but total income from primary, secondary and tertiary. So that's your GDP. तो प्राइमरी से कितना पैसा आना है, सेकेंडरी से कितना पैसा आना है. See the facts what they are talking about here. Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17. बस हम यहाँ पे थोड़े अटक से गए हैं. हमारा जो नंबर है, फिगर, वो 17 पे ही है, जो कि शेयर बढ़ना चाहिए. अगर 100% हमारा पैसा को ले लें तो सिर्फ 17% पे हम अटके पड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके. आउट ऑफ द टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. इस 27 में से 10% जो हैं वो आपके माइनिंग, क्वारिंग और इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के भी हैं. तो थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट है. जरूरत क्या है इसको प्रोग्रेसिव करने की, ये कि हमें इसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है और पॉलिसीज में चेंजेस लाने हैं. जब पॉलिसीज में चेंज लाओगे, डाइवर्सिफाई करोगे, तो वो जो फिगर है 17 की, इट विल स्टार्ट शूटिंग अप. हाँ, कभी भी 100 नहीं हो सकता है, विच यू नो, बिकॉज 3 सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डेकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम. एनुअल इंडस्ट्रियल रेट, ग्रोथ रेट जो होती है ना कंट्रीज की, वो दिखाती है कि आप कितने प्रोग्रेसिव हो और आपके
अर्निंग कितनी ज़्यादा है। हमारे कंट्री के कुछ सालों में जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडस्ट्रीज की वो 7% है। ये बहुत अच्छी फिगर है। इफ दिस कम्स डाउन, आपका प्रोग्रेस जो है वो हैम्पर होगा और जीडीपी भी गिर जाएगी। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज 12%। टारगेट क्या है? 12% की। 12% एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग, करेंटली किसी भी कंट्री का 12% नहीं है, नॉट इवन ऑफ चाइना। एंड वी आर नेक्स्ट टू चाइना इन दिस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एनुअल ग्रोथ रेट। अगर हमारा साथ है तो वो 9, 9.5 पे होते हैं, हमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉम्पिटिटर है वो हमारे। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10%। मतलब हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली है 2003 के बाद से। हाँ, 2020 में ये गिर के बहुत कम हो गया है, बिकॉज यू नो द रीजन, बट देन यस, स्टेबल हो रहे हैं हम एंड वी आर कैचिंग अप विद आवर नंबर ऑफ 7%। Now please remember this, NMCC, National Manufacturing Competitiveness Council. This council is set up just to keep one thing at high, and that's your annual growth rate. Industrial, तो ये प्लानिंग है और इनका काम है कि ये ग्रोथ रेट जो है वो 7% या उससे ज़्यादा ही रहे। अब कितने सक्सेसफुल होते हैं वो डिपेंड होता है कि एग्जीक्यूशन कैसा है। अब आते हैं कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग टू नो अबाउट दिस टॉपिक। आई एम गिविंग यू अ कैपिटल। आप ऐसा सोच लीजिए, आपके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। सो यू हैव अ कैपिटल अराउंड 5 करोड़ और 10 करोड़। अब थिंक वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री। ये पहला क्वेश्चन है। आपके मन में जवाब आएगा कि ओ, मैं तो मेरे घर के नज़दीक ही शुरू करूंगा। चलो, आई बाय योर पॉइंट, बट देन अब आप ये सोचिए कि आप किस चीज़ की इंडस्ट्री डालोगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो ध्यान में जब आप रखोगे तो आपका लोकेशन परफेक्ट होगा, और नहीं है तो जब आप ये पढ़ लोगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको एक लोकेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इंडस्ट्रियल लोकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जब तक रॉ मटेरियल नहीं है आप वो इंडस्ट्री शुरू नहीं कर सकते हो। प्राइमरी चीज व्हाट यू नीड फॉर एन इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो लॉजिक ही नहीं है। बात यह कहना चाहता हूं मैं कि इफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर इन छोटा नागपुर प्लेटो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन ओर। अब आई कैनॉट स्टार्ट अ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन बाड़मेर और जैसलमेर जस्ट बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मनी। क्योंकि सेंसस देखो कैसा है बेटा, on eastern part में I have my raw material, I cannot spend to bring that raw material to Barmer और जैसलमेर which is on the western front of our country। तो लोकेशन में सबसे जरूरी चीज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड चीज लेबर, देन मनी, पावर एंड मार्केट। व्हाट इज दिस पावर? पावर इज इलेक्ट्रिसिटी, market is how close it is to the market for exporting and importing, and that's the reason why you see most of the industries are close to Bombay और चेन्नई और कोलकाता being major cities, और सारे इसी की पेरिफेरी में आते हैं क्योंकि आसानी से आप इन जगहों से लोन ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, इन जगहों से एक्सपोर्ट कर सकते हो, और ये खुद एक बहुत बड़े मार्केट है। सो ये आपके मेन चीजें हैं जो आपके इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ट्रेंड टू लोकेट एट मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड। ये सारी चीजें एक जगह पर मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उस एक जगह पे ये सारी चीजों को अरेंज कर सकते हो तो आप इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं। दिस इज वन वेरी मेजर पार्ट। यहां से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे बट आंसर यहीं पे रिवॉल्व होगा आपको। अब बात करते हैं इन फैक्टर्स को थोड़े से और रिफाइंड तरीके से समझने की कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंडस्ट्रियल लोकेशन। अगर मैं इन डेप्थ जाता हूं तो फिजिकल फैक्टर्स क्या होगा? रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्स, वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट। नाउ आई कैनॉट स्टार्ट अ इंडस्ट्री इन लेह लद्दाख, I can't start it in Manali or in Nainital,
बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। सेम गोज कि मैं सीमेंट फैक्ट्री वगैरह जो है इतने अपर पार्ट में नहीं लगा सकता हूँ, वैसे ही कोरिंग फैक्ट्री वगैरह मैं प्लेन एरिया में नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पत्थर होना ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स फिजिकल हैं जो आप अवेलेबल कर सकते हो, बट फिर भी क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बिना पानी के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। नॉट ओनली वाटर इज द रिक्वायरमेंट फॉर द बॉयलर्स एंड फॉर द ट्रीटमेंट्स, बट देन यू नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। आप जो लेबर्स लाओगे उन्हें भी तो देना पड़ेगा पानी। ह्यूमन फैक्टर्स, लेबर होना ज़रूरी है। अगर आप लद्दाख में जाते हो तो वहाँ तो जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, लोग जो हैं बहुत ही कम है, तो इतने कम लोग होंगे तो वहाँ पे लेबर नहीं मिलेगा आपको। एंड देन ट्रांसपोर्ट, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम दैट पार्ट, क्योंकि वो तो वैसे ही 6 महीने बंद हो जाते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्शन बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। देन कैपिटल, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी इटसेल्फ नॉट सूटेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल। दे डू नॉट वांट कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वहाँ लगें, क्योंकि वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो सकता है अगर कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह होता है। ऐसे ही हर जगह के कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। कैपिटल एंड बैंकिंग, you don't have big banks and branches in certain part of countries, and that's the reason why most of the industries are located close to the major metropolis cities in our country. ये आपके जो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के। सो नाउ लेट्स सी एंड चेक अबाउट दिस मार्केट लिंकेज। बहुत आसान सी चीज़ है, ये एक आपका फ्लो चार्ट बना रखा है। सी आपको पहले चाहिए रॉ मटेरियल जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। Then you will transport this raw material to factory. From the factory you will get a processed final good. This final good would be again transported to the market. From the market it is sold, then you get money. This money is again invested in buying raw material and the process continues in this cycle. ये आपका मार्केट लिंकेज है। अब आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि आइडियल लोकेशन कैसा होता है, जो हम अभी बात कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट अ साइट। आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अगर आप जहां फैक्ट्री डाल रहे हो वहां पर अगर आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है तो कितना पैसा लगेगा, क्या वो फिजिबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है रॉ मटेरियल तो बहुत आसान है, अगर नहीं है तो वहां लाने तक का जो खर्चा है वो भी आप कैलकुलेट करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट अ साइट, आप ये भी चेक करोगे कि वहां पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी पड़ रही है, लैंड कितना महंगा पड़ रहा है, लेबर कितने महंगे पड़ रहे हैं या लेबर कहाँ से आ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, जब मेरा रॉ मटेरियल बन जाएगा फाइनल गुड्स में तो मैं उसे एक्सपोर्ट करने के लिए कितना खर्चा करूंगा और कहां तक भेज सकता हूं, कितनी दूर मेरी मार्केट है। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट अ साइट, ये आप ध्यान रखिए, इन 3 चीज़ों पर मैटर करता है। अगर ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे तभी आप फाइनल डिसीजन ले पाओगे कि हाँ बॉस, इस जगह पे मैं इंडस्ट्री चालू करना चाहता हूँ। जब आप डिसाइड कर लेते हो तो लेट्स सी कि किन किन टाइप की इंडस्ट्रीज आप शुरू कर सकते हो, तो उनके बारे में जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए, ये क्लासिफिकेशन बहुत आसान से हैं और रॉ मटेरियल पर ज़्यादा फोकस करना और कैपिटल पे, बस ये 2 चीज़। हमेशा 2 चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपके जो क्लासिफिकेशन है बहुत आसान सा हो जाएगा। पहला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, तो जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड हैं वो आ जाएंगे एग्रो बेस्ड में। आप नाम ले लीजिए, शुगर इंडस्ट्रीज, रबर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सारे के सारे एग्रो बेस्ड हैं। दूसरा आ जाता है मिनरल बेस्ड, तो आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल, ये सारे के सारे मिनरल बेस्ड हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के बेसिस पे आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब रोल क्या है, तो बेसिक और की इंडस्ट्री। देखिए, बेसिक और की इंडस्ट्री का मतलब ये होता है it supplies the product or raw material to manufacture other goods। मैंने कहा था ना आपको, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये बेसिक इंडस्ट्री है। जब ये होंगी तब जाके आपके पास आयरन होगा, तब जाके उस आयरन को मोल्ड करके कोई और मशीन बनाई जाएगी, फिर उस मशीन से जाके आप अपना अगला काम करोगे। तो इसलिए इसे कहते हैं बेसिक या फिर की इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, क्या आप आयरन और खा सकते हो? क्या आप आयरन खा सकते हो, एल्यूमिनियम खा सकते हो? नहीं। तो क्या खा सकते हो जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। यहां से डायरेक्ट कंजम्पशन होता है, तो अगेन वो एग्रो बेस्ड होगा, जैसे कि शुगर है, टी है, पेपर है, स्विंग मशीन्स, फैन, ये सब डायरेक्ट कंजम्पशन की चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पे खाना ही नहीं, यूज़ करना भी है, तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो जाती हैं।
आगे आते हैं और बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा एक बात बताइए, आयरन एक्सपेंसिव है कि शुगर या वीट? तो आयरन एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से कैपिटल कहाँ पे ज़्यादा लगेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में कंपेयर टू आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उस बेसिस पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय किया जाता है और बहुत ज़्यादा आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। कॉटन टेक्सटाइल को उन्होंने लार्ज स्केल में डाला है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे नंबर के लोगों से काम चल जाता है, कम नंबर मजदूर जो है कम होने चाहिए लेबर, और इंडिविजुअल्स भी इसे चला सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ गुड़, खांडसरी, जो खड़ी शक्कर होती है उसे आप, ये छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको स्मॉल स्केल में डाला है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट इंडिविजुअल ओनर होगा, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर जो होगा वो गवर्नमेंट ओनर होगा। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। तो सेल, भेल अच्छे से याद रख सकते हो। सेल इज स्टील अथॉरिटी जो इंडिया लिमिटेड है, भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो ये गवर्नमेंट है, समझे। जैसे आप रेलवे बोल सकते हो। प्राइवेट में आप टाटा, आदित्य बिरला, देन यू हैव रिलायंस, सब प्राइवेट सेक्टर हैं, इंडिविजुअल ओनर। नाउ जॉइंट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। एनटीपीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये जॉइंट सेक्टर्स हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर्स, कुछ लोग मिलके पैसा पूल करते हैं, दे पुल इन मनी एंड देन दे स्टार्ट द इंडस्ट्रीज। सो अंडरस्टैंड, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by the producer और supplier of raw material। शुगर कोऑपरेटिव्स होते हैं आपके, फिर टेक्सटाइल कोऑपरेटिव्स होते हैं, यहाँ पे कॉटन जो फार्मर्स होते हैं दे पुल इन मनी एंड देन दे स्टार्ट एन इंडस्ट्री। ऑयल सीड्स का भी होता है। तो कोऑपरेटिव मतलब कुछ लोग मिलके। मूविंग अहेड एंड वी मूव टू रॉ मटेरियल। तो अगर आयरन यूज हो रहा है तो वो हैवी इंडस्ट्री है, और अगर लाइट इंडस्ट्री है मतलब उसमें आपका ऐसे मटेरियल यूज हो रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली कम खर्चे में होते हैं। तो वो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल वाला है ना, बिल्कुल वो याद रखिएगा। तो हैवी इंडस्ट्रीज यूजेस हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री यूजेस लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स। इसमें इलेक्ट्रिक फैन, स्विंग मशीन्स एंड इवन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विल कम, क्योंकि उनमें रॉ मटेरियल हल्का होता है ना। कंपेयर कर लीजिए, चीनी 1 किलो चीनी हैवी है या फिर 1 किलो आयरन। क्या स्टूपिड सा सवाल है ना, 1 किलो तो दोनों सेम ही होंगे ना। बट देन आयरन ओर इज मोर एक्सपेंसिव एंड हैवियर देन अ शुगर केन, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब जैसे कि टाइटल है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो एग्रीकल्चर के बेसिस पर बनी है या उनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आएंगे और इसीलिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना है इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का या फिर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, क्योंकि सबसे मेजर क्या है, टेक्सटाइल है, कपड़े की इंडस्ट्री। See, textile industries are contributing significantly to industrial production. Total industrial production में 14% टेक्सटाइल का है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखिए कितना है, 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली, लिटरली सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। और कंट्रीब्यूशन देखो जीडीपी को कैसा है, 24.6% फॉरेन एक्सचेंज। तो 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल का। लगभग 35 मिलियन लोगों को डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड करते हैं। कंट्री को 24.6% के रेट से हमारा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। इट्स अ बिग इंडस्ट्री, वेरी बिग इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। आफ्टर एग्रीकल्चर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सी, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड्स योर टोटल जीडीपी। तो अगर मैं जो बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो भी है उसमें से 4% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। मतलब रॉ मटेरियल भी है, मशीन्स भी हैं और वैल्यूएबल प्रोडक्ट भी है। हर चीज एक ही जगह पे अवेलेबल और पूरी कंप्लीट डिपेंडेंसी और साइकिल है टेक्सटाइल्स की। अब आते हैं टेक्सटाइल में सबसे मेजर क्या है, तो वो है कॉटन टेक्सटाइल। देखिए फर्स्ट थिंग विच एक्सपोर्टेड फ्रॉम आवर कंट्री
सिंस एजेस इज द क्लॉथ। वो कैसे होता था आप जानते हैं, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, मुस्लिन, कैलिको, ये सारी चीजें हमारे यहां से एक्सपोर्ट होती थी। सिल्क, स्पाइसेस, और वो क्या है, कपड़ा है। तो सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो है कंट्री की वो कॉटन टेक्सटाइल है। आफ्टर 18th सेंचुरी वी स्टार्टेड हैविंग पावर लूम्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे जो चलते हैं वो लूम्स। उससे पहले हमारा प्रोडक्शन जो था वो घर में था, वो हैंडलूम से ही होता था। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री suffered a setback as they could not compete with the mill-made product from England. Nothing new in this. This is an history. English people came, they bought the finished product from England. और जो finished product है वो mill made है, हाथों से नहीं बनाया गया, तो वो cheap है। हमारा जो product था वो हाथों से बनता था, क्वालिटी थी बट एक्सपेंसिव था। पर वो जो चीज़ है एक्सपेंसिवनेस became a reason why this industries decline. ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बहुत डिक्लाइन होने लगे। देखिए ये ट्रेडिशनल है और ये मिल है। आगे बढ़ते हैं। This industries has close link with agriculture and it provides a living to farmer, cotton ball plucker and worker engage in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packing, tailoring and sewing. डायरेक्ट जॉब तो है, इनडायरेक्ट देखिए कितने हैं। वीवर्स हैं, स्पिनर्स हैं, डायर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, पैकिंग वाले हैं, टेलरिंग है, स्वीविंग है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो इतने ज़्यादा लोगों को इनडायरेक्टली भी जॉब मिलता है। और देखिए लिंकेज कैसा है, सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल बढ़ेगी और इस पर डिपेंडेंसी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो भी बढ़ेगा। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ पे आप स्पेसिफिक रहना। जिस भी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे वो ये जरूर क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्टर्स सभी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सेम होंगे। हाउ फार दे आर फ्रॉम द मार्केट, हाउ डू दे गेट द फाइनेंस एंड फ्रॉम वेयर डू दे गेट द लेबर। ये कुछ फैक्टर्स बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ये सारे इंडस्ट्रीज में सेम होंगे। स्पेसिफिकली आप रॉ मटेरियल की बात करोगे ऐसी इंडस्ट्रीज में, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन। देखिए मैं कॉटन इंडस्ट्री शुरू करूंगा तो सबसे पहला मेरा रॉ मटेरियल होना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसके लिए क्लाइमेट शायद सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ाई गई थी जहां पे कहा था कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज फॉर कॉटन। अगर वो फ्रॉस्ट फ्री नहीं है तो कॉटन बॉल्स जो होंगे वो खराब हो जाएंगे और खराब क्वालिटी की कॉटन मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि ह्यूमिड क्लाइमेट जो होगा वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो काम होगा ही नहीं। और इसी पर आपका एक आंसर डिपेंड होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही हैं। आप एक रामबाण, जो कि फाइनल चीज़ आप याद रखिए, इंडिया में हर इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक यही है, इरेटिक पावर सप्लाई। आप जानते ही हो ना आपके घर की बिजली कितनी जल्दी जाती है और कितने फ्रीक्वेंटली जाती है या फिर कितनी आती है। तो इंडस्ट्रीज का भी यही हाल है और अगर इतनी फ्रीक्वेंटली बिजली जाएगी तो ये सफ़र करेंगे और सारी ही इंडस्ट्रीज का है। तो ये पॉइंट तो आपका फिक्स है ही, आप कुछ भूल भी जाओगे तो ये पॉइंट लिख पाओगे। While spinning continues to be the centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, ड्राई एरिया में, डेक्कन प्लेटू में। तो सादा इंडस्ट्रीज कहाँ हैं, यहीं हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्पिनिंग बहुत होती है, बट वीविंग हमारे कंट्री में पूरी तरीका से स्कैटर्ड है। इसीलिए आप देखिए ना, बनारसी, कांजीवरम, पटोला, मैंने 3 चीज़ों के नाम लिए। ये 3 वीविंग पैटर्न है जो एक्सेप्शनल है इंडिया के और 3 अलग अलग कॉर्नर से हैं। एक एक्सट्रीम ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से है, मतलब नॉर्थ साइड से है यूपी में, दूसरा जो है वो साउथ में है और तीसरा जो है वो वेस्ट में है। तो ये बस एक एग्जाम्पल था। तो वीविंग पूरी तरह से स्कैटर्ड है हमारी कंट्री में। और देखिए
डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से अलग अलग तरीके की चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, और खास करके जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती है ना डिज़ाइनिंग की, वो आपने देखा होगा चिकनकारी, गोटा, जरी, ये सब अलग अलग जगहों पे की जाती हैं। लखनऊ में अलग कुछ होगा, बनारस में कुछ अलग होगा, मैसूर में कुछ अलग होगा। तो वीविंग एक्सेप्शनली एंड हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, पर स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। तो फैक्ट्रीज कहाँ हैं, सारी की सारी महाराष्ट्र में या गुजरात में है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, और ये ध्यान रखिएगा हर एक प्रोडक्ट के साथ आपको ये होगा, हर एक प्रोडक्ट, हर एक इंडस्ट्री के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम्स, मैंने कहा ना इरेटिक पावर सप्लाई, ये रामबाण है, हर इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर वो थर्ड पॉइंट में है। बट देखिए स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्रीज के क्या प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट विच केटर्स लोकल मार्केट। हमारा प्रॉब्लम ये है, वी वेन एवर गेट इन टू द प्रोडक्शन, आर एम इज ओनली टू contribute to local market and to capture local market. हम जब भी बिजनेस में जाते हैं, वी नेवर थिंक ऑफ कैप्चरिंग द होल कंट्री और द ग्लोबल मार्केट, और इसी वजह से ये स्कैटर्ड है, स्मॉल है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए जो कंट्री अपने टेक्सटाइल के लिए दुनिया भर में फेमस था हिस्टोरिकली, आपका चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इंडिया 33% ऑफ द वर्ल्ड फिनिश्ड कॉटन क्लोथ्स के लिए फेमस था, और जो क्वालिटी थी उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं था। कोई भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया के गुड से कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था। बट आज हमारी हालत ऐसी है कि व्हेन वी गो टू द मार्केट, वी डोंट नो कि इंडियन ब्रांड्स हैं कौन से, and we only run and rush for the foreign brands. तो we have actually declined in terms of quality, और weaving इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। Weaving, knitting and processing unit cannot use much of the high quality yarn. Why? Because we export. जो yarn होता है हमारा, जो धागा होता है हमारा, वो हम भेज देते हैं अच्छी क्वालिटी वाला। जब हम भेज देते हैं तो फॉरेन कंट्रीज उसका बहुत अच्छा यूज़ करती हैं और वो गुड्स बनाती हैं, और हम फिर उसी को खरीदते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इफ़ यू लर्न अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इटली और फ्रांस, यू विल फाइंड कि वहाँ पे कॉटन अच्छी क्वालिटी का मिलता ही नहीं है, और ऑनेस्टली मिलता ही नहीं है। पर फैशन ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इटली और फ्रांस में ही है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है, अच्छी क्वालिटी का यान वो हमसे लेते हैं, और फिर उनके जो फैशन हाउस हैं वो बैठते हैं और बहुत बेहतरीन वीविंग करते हैं, जिसलिए वो एकदम हैवी प्राइस चार्ज करते हैं, और हम बड़ी खुशी खुशी उन्हें दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास वीविंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, वो भी एक रीज़न है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन। एक चीज़ याद रखो, अगर आप कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वैल्यू आ रही है, नो डाउट, बट देन क्या वो वैल्यू उतनी होगी जितनी फिनिश गुड्स की होती है? बहुत कम होगी। तो इसीलिए एक ड्रॉबैक है। आउटडेटेड मशीनरी, इंडिया में ये कॉमन चीज है। एक बार आप मशीन खरीद लो तो जब तक मतलब उसके अंजर पंजर ढीले नहीं हो जाएंगे, आप उसे बदलोगे ही नहीं। हमारी वो मेंटेलिटी पहले से रही है। मे बी द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी हैव, वी कैन नॉट अफोर्ड फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन। तो इसीलिए मशीनरी जो है वो पुरानी है, वो एक हमारा हैम्पर करता है प्रोडक्शन। और जैसे कि मैंने कहा, इरेटिक पावर सप्लाई, घर की इलेक्ट्रिसिटी कभी भी चली जाती है तो इनकी भी जाएगी। ऑन दैट लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारे लेबर्स जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब, बट सब जगहों पर ये रीज़न कॉमन है कि टर्न आउट ऑफ लेबर जो होता है वो 100% नहीं होता है, और वो प्रोडक्शन पे असर ज़रूर डालता है। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत सारे सेम पॉइंट्स अब आप हर एक इंडस्ट्रीज़ में पढ़ेंगे। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप जिस भी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे उसमें फैक्टर्स पूछे जाएंगे आपको कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन दिस पार्ट, वट एवर द पार्ट इट इज। देन वो फैक्टर्स भी सेम ही होंगे, बैंकिंग याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन याद रखना, और उसके बाद में रॉ मटेरियल याद रखना, इजी लेबर याद रखना, ये सबके कॉमन है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना होगा ऑनेस्टली। उसके बाद आपको ये भी पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री। आई थिंक एक बार आप ये ध्यान में रख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, सारी इंडस्ट्रीज पे यही लागू होगा। सारी इंडिया में है,
इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो पूरी इंडिया में है, लेबर्स इंडियन है भाई, तो नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, ईस्ट इंडियन हो और वेस्ट इंडियन हो, रीजंस तो हम सेम ही देंगे ना काम करने के, तो वो भी बिल्कुल कॉमन सी बात हो जाती है। अब आते हैं आगे और हम बात करेंगे कि ट्रेड हम कैसे कर रहे हैं और इस सेक्टर से हम पैसा कितना कमाते हैं। देखिए ये भी एक कॉमन सी चीज है। आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। ट्रेड की बात कर रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात करें, आप है ना दुनिया के 4 बड़े कंट्री अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आप सब में वो लिख दीजिए, आप 100% राइट हो। क्योंकि आप जानते हो ना हम इन्हीं कंट्री से ट्रेड करते हैं, तो हम क्या देंगे जो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, कॉटन टेक्सटाइल है और आपकी और हमारी अच्छी रिलेशनशिप है, तो हम यही सामान आपको देंगे और आपसे कुछ और लेंगे। तो ये कंट्रीज तो बड़ी फेमस है, आप सभी जानते हो। ये है अमेरिका जहां हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सामान जाता है, फ्रांस, ब्रिटेन ले लो। अगर आपको और स्मार्ट आंसर लिखना है और सेफ लिखना है तो लिख दो कि अमेरिका और यूरोप, मैनी कंट्रीज ऑफ अमेरिका एंड मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। अमेरिका व्हेन आई से इट इज नॉर्थ एंड साउथ बोथ, और यूरोप बोल दूंगा तो मुझे पता है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आ ही जाते हैं, तो वो ओवर स्मार्ट आंसर हो जाता है। टेक्निकली अगर आप स्पेसिफिक कंट्री लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सो वी एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ आवर yarn टू जापान and other countries where we send our cotton goods is USA, then you have UK, Russia, France, Eastern European countries, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका। आप कोई भी 3-4 कंट्री याद रख लीजिए, आप लिखोगे हम सबको कॉटन देते हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो बहुत आसान होगा और आप रॉन्ग नहीं होगे। 3 से ज़्यादा लिखना भी मत, स्मार्ट वर्क अगर रखना है तो।